my name is Gajendra Das Sharma and you are watching Englit, and in this video we are going to explain the poem The Last of His Tribe by Henry Kendall. He is an Australian poet and he talks about the injustices that were done to the Aboriginal tribes under the colonial regime of British Empire. Whenever there was a colonial regime, so it was a challenge to the existing culture, tribal communities, eradication of local culture, imposition of the alien culture, imposition of language, snatching of the local heritage, forcing the local people to abandon their faith and culture and adopt a new one. And in the struggle, sometimes the local tribes or the local people resisted, and that resistance resulted in the massacre, huge massacre. So the same kind of massacre of the tribe you can find in this poem. The poet seems to be lamenting over the fact how the Aboriginal tribes were eradicated and then they suffered huge massacre, and then their lands were snatched, were completely taken away on the name of imperialism. On the name of imperialism or the expansionist program, many local heritage, many local communities had to suffer a lot. So let's talk about this in this poem. First, let us talk about the title itself. The Last of His Tribe. The last refers to the last young man. In the poem, there is a young man who is particularly on the verge of his extinction himself. He has seen how the entire tribe has been eradicated. He survives. And now he is escaping. The poem talks about how the young man, the last man of the title, the last means the last man of that tribe, Aboriginal tribe. And then he is trying to escape the massacre that his whole tribe had to suffer. And now he is trying to escape in the forest. Whether he escapes and what happens to him later on, so there is a kind of regret. So there is a kind of lament that the poet is expressing for the loss of this tribe. So the last man is the young man of the poem. Tribe is the Australian Aboriginal tribe. It was the indigenous tribe in Australia which had to suffer a huge massacre and eradication and extinction when there was a colonization. So the local culture, tribal culture particularly, had to suffer a great deal in expansionist program or this imperialist program mission. The poem was first published in the Sydney Morning Herald in 1964 and it was then titled Woonona, The Last of His Tribe. It is the complete title, Woonona. So sometimes it is there in the question, what is the complete title of the poem entitled The Last of His Tribe? So it is Woonona, The Last of His Tribe. As far as the themes of the poem are concerned, so the poem talks about many atrocities that the tribal people had to suffer, the injustices that they had to suffer at the hand of imperialist power. So it talks about the injustice of the tribal people, cultural dominance, colonial dominance and cultural eradication. Cultural eradication and the tribal eradication. How certain tribes had to suffer a great deal. How certain tribes had to simply get extinct. So the poem talks about the atrocities, the vagaries of this colonization period. It also talks about civil injustices, imperialism, at the hand of imperialist stakeholders, and the extinction of Aboriginal tribe, particularly Aboriginal tribe. So let's move to the poem first. So the poem opens with a note how this young man is trying to escape. शायद उसका पीछा किया जा रहा है उसको मारने के लिए, जिस तरीके से उसकी पूरी ट्राइब को मार दिया गया है और उस फॉरेस्ट में आग लगा दी गई है जहाँ पे उनका घर होता था, जहाँ पे वो रहते थे. एक रिवर साइड के या लेक साइड के जो नाला टाइप का होता है वहां पर वो कंप्लीट सीन है जहां पर ये बचने की कोशिश कर रहा है. पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस द एगोनी दैट ही फील्स एट द टाइम व्हेन ही इज वर्चुअली अश्योर्ड दैट ही इज गोइंग टू बी किल्ड.
later or sooner. He crouches. Crouches means sits. He sits and buries his face on his knees. Bury his face on his knees मतलब in desperation. In desperation and in disappointment, in sorrow at the loss of his men, sorrow at the loss of his complete tribe, sorrow of the life, the destiny that he has meted, sorrow of facing this kind of situation in his life. So he is very dejected, disappointed, and in desperation he is sitting covering his head in his knees, buries his face on his knees and hides in the dark, and he is trying to hide his face. शायद वो बिल्कुल मुंह छुपा करके बैठा है ताकि उसके बाल ही ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, और शायद वो जो अंधेरा है थोड़ा जंगल का उसमें वो दिखाई ना दे, इस कोशिश में शायद बैठा है। एक तो इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है। दूसरा क्या है कि when you are completely sorrowful, you are dejected, you are disappointed, you are desperate, your posture suggests this. आपका पोस्चर भी उसी तरह का हो जाता है। You don't sit comfortably, you don't face the people, you simply try to hide your face, you try to bury your face in your knees and then cover your face. The similar is the situation with this young person. तो शायद इसी तरह से लग रहा है कि वो इतना डिजेक्टेड है, इतना डिसअपॉइंटेड है, इतना दुखी है अपनी उस पूरी ट्राइब के खात्मे के बाद, और अपने उस वर्चुअली जो इमिनेंट डेथ है उसको उसका एहसास हो चुका है कि शायद उसको भी अब मारा जाएगा. Perhaps the people out there from the colonialist regime, they are hunting him down, they are trying to find him, and then the moment they find, उसको बेचारे को मार दिया जाएगा. शायद इस वजह से भी वो परेशान है. So he is trying to hide his face in the dark of his hair, for he cannot look up to the storm-smitten trees. Storm-smitten एक तरीके से हो सकता है जैसे आग का जो सैलाब है, आग का जो तूफान है, या तो उसके पूरे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में भी आग लगा दी गई है और उसकी वजह से अब एक जैसे राख का मंजर है, खाक का मंजर है, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन दिख रहा है. जहां पर भी उसकी नजर जा रही है वहां पे उसको खात्मा, डिस्ट्रक्शन ही नजर आ रहा है. सो ही इज नॉट ट्राइंग टू लुक एट द सीन आउटसाइड, क्योंकि वो अगर जो सामने वाला सीन है उसको अगर देखता है तो और ज्यादा डेस्परेशन फेस करनी पड़ेगी कि यार दिस इज द डेस्टिनी दैट वी हैव मेट एंड परहैप्स दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन विल बी माइन आल्सो. So smitten मतलब stricken trees. The trees have also witnessed this havoc. ये उस ट्राइब के लोगों को ही नहीं बल्कि उस ट्रीज को, फॉरेस्ट को, जो घर था उनका, उनको भी उन एट्रोसिटीज का, उन इनजस्टिस का फेस करना पड़ा. एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर पोस्चर, जो दुखी होने वाला पोस्चर है, उसमें बेचारा क्या सोच रहा है? सिर्फ उस लॉस के बारे में सोच रहा है, उस डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा है जो इसको और इसकी पूरी ट्राइब को फेस करना पड़ा है. सोच रहा है कि किस तरीके से he had a family, he had a life, the smoothly running life. वो जो लाइफ थी और अचानक से there came colonization and then there came the imperialists and then they started forcing the people of the tribe to abandon their life, abandon their lands. तो किस तरीके से वो बाहर के लोग आए और उनको मजबूर कर दिया कि अपनी लैंड्स भी देनी पड़ेगी और अपनी कल्चर भी अबेंडन करनी पड़ेगी और अपने आप को या तो हमारा जो एजेंडा है या फिर जो हमारी पॉलिसी है, फेथ है, कल्चर है, उसको अडॉप्ट करिए, अदरवाइज यू विल हैव टू डाई, यू विल हैव टू पे हेवीली फॉर दिस. सो जिस तरीके से उसके लोगों का खात्मा हुआ होगा, उन मैसेकर का, जिस तरीके से उनको उस मैसेकर का, ह्यूज मैसेकर का, कॉमन मैसेकर को फेस करना पड़ा होगा, उसके बारे में सोच रहा है. फिलहाल सोच रहा है. देयर कैन बी मैनी अदर डिफरेंट थॉट्स इन हिज माइंड. सो थिंक ऑफ द लोनलीनेस देयर. ही फील्स, ही थिंक्स हाउ लोनली ही हैज बीन. ही इज राइट नाउ, क्योंकि इसके सारे जो दोस्त, सारे सगे संबंधी, परिवार, पड़ोस, ये जितने भी लोगों के जो कम्युनिटी थी, पूरा कुटुंब जो था उसमें, वो सारे लोग they are no more, they have been all killed, सारे लोग मार दिए गए. और क्या जो लॉस ऑफ द ट्राइब और ट्राइबल लाइफ, वो जो ट्राइबल लाइफ है, जो उसका लॉस, he had to suffer, all his men had to suffer this loss,
and now he is thinking about that loss. How come it is possible that the person from outside comes in my house and forces me to abandon my faith and or to be killed? ये मतलब कैसे हो सकता है? How this kind of injustice a man can have, man can suffer, face. The Wallaroos means kangaroos. The kangaroos grope through. Grope means to find a way in dark. जैसा अंधेरे में आप अपना रास्ता फाइंड करने की कोशिश करते हो, so this is called groping. So the kangaroos are groping their way because it is somewhere, it is the dark. जो सीन है वो क्या है? एक डार्कनेस टाइप की है, वहाँ पे धुआं या मिस्ट उस तरह का एक सीन है, जो शायद वो जो पेड़ों को जलने के बाद में जो धुआं निकल रहा है वो उसकी वजह से, या थोड़ा शाम का टाइम है, मतलब it is not broad daylight, it is not the open light. So the walrus grope through the tufts मतलब जो tufts of grass, जो घास के छत्ते टाइप के होते हैं वो, या फिर thickets, जो thickets आप कह सकते हो, thickets of the grass, जो पूरा hedges है वो, तो उन hedges के थ्रू या फिर उन जो झाड़ी है उसके थ्रू वो अपना रास्ता फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. He is sitting at this particular spot and then he sees that the kangaroos are also trying to escape or to find their way. शायद अब क्योंकि फॉरेस्ट में आग लगा दी गई है तो जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी एक डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ा है, उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है. ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, मतलब दे क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड द वाइल्ड लाइफ. They preserve the wildlife, they worship the wildlife, so they don't harm the wildlife. But the money-minded, the money-mongers, the industrialist और so-called colonialist, इनके लिए वो ज़मीन वो एक रिसोर्स है, वो फॉरेस्ट वो एक रिसोर्स है, रिसोर्स जिसको कि उनको यूटिलाइज करना है और कंज्यूम करना है पैसे बनाने. एंड टर्न टू द कवर्ड्स. कवर्ड्स मतलब क्या है? जो हाइड आउट, जहां पे जिन की अपनी वो जगह है, छुपने की जगह. वो कैंगरूज भी शायद अपने उस जो छुपने की जगह है उनकी वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये मतलब बैठा हुआ है और उसके सामने से वो कैंगरूज वगैरह वो सारे पास हो रहे हैं. इट इज नॉट सिंपली द मैन, इट इज नॉट सिंपली दिस यंग मैन और द मैन ऑफ द ट्राइब who had to suffer who had to face the anger of these colonialists. Even the wildlife has suffered greatly. तो यहाँ पे इंसान ही नहीं बल्कि ये जानवरों को भी वो फेस करना पड़ा है. और उसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से वो अकेला यंग मैन who has lost the entire population of his tribe. He is the sole survivor. He is sitting in desperation, particularly waiting for his final doom. और he is trying to escape. शायद कोशिश कर रहा है कि ये बच जाए उसी उसमें. वही पैरेलल वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ भी उसी तरह की कोशिश कर रही है. वो कैंगरूज represent this wildlife. They are also trying to escape the fear that has been caused by the imperialists. So the walrus group through the tops of the grass and turned to their coverts for fear. But he sits, he is this young man in the ashes and lets them pass. Where the boomerangs, this kind of tool is called boomerangs. एक जो ये लकड़ी का बना हुआ एक फ्लैट इस तरीके से कट में बना हुआ एक, ये एबोरिजिनल ट्राइब के लोग इसको वेपन की तरह यूज करते थे. मतलब इसको मारा तो ये क्या है, वापसी उनके पास आ जाता था. मतलब अगर आप ये दीवार पे जैसे मारोगे तो वहां पर टकरा करके आपके पास में ही आ जाएगा. तो ये उस तरह का टूल्स, मतलब दे वर इंडिजिनस टूल्स डेवलप्ड बाय द ट्राइबल पीपल. वो हंट करने के लिए या फिर वेरियस अदर जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो उस तरह का ये एक हथियार को ये एक तरह का टूल ही है. तो वेयर द बूमरैंग्स स्लीव विद द स्पीयर, मतलब उसके पास में जो है वो सारे टूल्स रखे हुए हैं. जो टूल्स अब शायद उसकी हेल्प करने में इनकेपेबल हैं क्योंकि वो अकेला है एंड देन ही इज बीइंग हंटेड डाउन बाय द एंटायर आर्मी. शायद वो पूरी इंपीरियलिस्ट की आर्मी ही है जो कि एक एबॉरिजिनल बंदे को ढूंढ के मारने की कोशिश करे. तो नाउ ही विटनेसेस हाउ
the wildlife is trying to escape and how his entire paraphernalia of tools, जो पूरा तामझाम है tools का, चाहे वो boomerangs हो, चाहे वो spear हो, with the Nala. Nala is a river, water course. A water course, the sling and the spear. स्लिंग मतलब एक थैले टाइप की, जैसे स्लिंग तो पर्टिकुलरली जब आपके हाथ में चोट लग जाती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप पट्टी बांधते हो वो स्लिंग कहते हैं। तो स्लिंग यहाँ पे कुछ और इनका उसको टूल की तरह यूज करते होंगे वो, तो वो टूल्स, वो सारे टूल्स, चाहे वो स्लिंग हो, चाहे वो स्पेयर हो, चाहे वो बूमरैंग्स हो, दे आर सिटिंग, दे आर लाइंग बिसाइड दिस पर्सन, जहाँ पे वो बैठा है वहीं पे ये रखे हुए। अब शायद इनका यूज कर पाए, नहीं कर पाए, अगर करना भी चाहेगा तो कितनों को उन टूल्स के थ्रू वो मार पाएगा या फिर भगा पाए। तो ये एक पर्टिकुलर सीन समझिए। The walrus groped through the tufts of the grass and turned to their coverts for fear, but he sits in the ashes and lets them pass. लेकिन ये कोशिश भी नहीं कर रहा, शायद कोशिश भी नहीं कर रहा भागने की, छुपा हुआ है क्योंकि छुपने में ही उसकी जान बच सकती है। What he is witnessing beside him, जो उसके टूल्स थे वो टूल्स भी पड़े हुए हैं। अब लग रहा है कि इन टूल्स को यूज करके शायद वो बच जाए या शायद वो मार दे, कोशिश करेगा कि उठ जाए। तो वो लेट्स सी इन ongoing stanzas. Ulula, behold him, the thunder that breaks on the tops of the rocks with the rain, and the wind which drives out with the salt of the lakes, have made him a hunter again, a hunter and a fisher. ये एक स्टिमुलेंट है। किस तरीके से after he witnessed that there was a thunder somewhere on the top of the hills, when he witnessed that there was a rain somewhere, when he witnesses that the breeze, the wind is disturbing the cool rays or waves of the sea, किस तरीके से वो नेचर, मतलब नेचर is trying to instill a courage in him, जो वो बैठा हुआ है और उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो बारिश हो रही है, वो गड़गड़ाहट, वो हवाएं तेज चल रही हैं जो कि वो समुद्र की लहरें हैं उनको डिस्टर्ब कर रही है, समुद्र को डिस्टर्ब कर रही है। इसका मतलब वो सब में क्या है, एक एनर्जी है। दे क्रिएट, दे रिप्रेजेंट एन एनर्जी, वो एनर्जी जो कि नेचर में इनहेरेंट है, उस एनर्जी में से ये खुद एनर्जाइज जो फील कर रहा है। अब उसको लग रहा है कि नहीं यार, बैठने में इट इज नॉट फॉर द मैन टू सिट अलोन एंड फेस द डेथ। अ मैन इज नोन बाय द करेज, सो ही शुड स्टैंड एंड फाइट वन मोर फाइट इवन दो इट इज, चाहे वो चला ही क्यों ना जाए, चाहे उसको मार ही क्यों नहीं दिया जाए, लेकिन what though the field be lost, all is not lost. Lula is a waterfall. एक जैसे poet is talking to the waterfall, कह रहे भाई waterfall, just look at this man. तो यहाँ पे एक personification भी, behold him, look at him how he is being stirred to courage. Why? Look at him that he is being stimulated, encouraged. He is feeling a surge of enthusiasm, a spirit of fight in him after witnessing the nature. कैसे thunder that breaks on the tops of the rocks with the rain. किस तरीके से जब उसने देखा कि there is a thunderstorm somewhere in the sky and then it is breaking the rain on the top of the hills. कि किस तरीके से वो thunder के बाद में वो बारिश हुई. Nature is expressing herself. वो and the wind which drives up the salt of the lake मतलब just like waves. तो वो एक शांति थी समुद्र की, वो डिस्टर्ब होती है। वो डिस्टर्ब किससे होती है? वो ब्रीज। तो ब्रीज उस सोए हुए समुद्र में, सोए हुए ओशन में एक स्टर, एक मूवमेंट क्रिएट कर देती है। ऐसे ही वो जो ऊपर का सीन था, जो एक लाइफलेस दिख रहा था, वहां पर बारिश हो जाती है और वो फिर अगेन इट कम्स टू लाइफ। तो वो ये दोनों एक नेचर के एक एनकरेज भरने वाली चीजें हैं जो कि उसने देखा और फील किया कि नाउ ही आल्सो नीड टू स्टैंड एंड ट्राई टू फाइट at least if he can. So which drives up the salt of the lake and made him a hunter again, and then now he feels like being a hunter again. Now he feels like being a man again. Now he feels like being a man of the tribe which is glorious. जो ट्राइब लड़ने के लिए जाने जाते थे, इवन दो दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द मोर पावरफुल आर्मी, मोर पावरफुल एनिमी, बट दे फॉट एंड फाइटिंग वाज देयर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। उनकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी? लड़ना।
तो अभी दोबारा इसको लग रहा है कि छुपने के लिए थोड़ी बने हैं. We aboriginal are not to hide. We aboriginal are to fight. If we face the foe, if we face the enemy, so we need to fight. We need to fight until we are destroyed. As long as we have even the last drop of blood in us, we'll fight back. तो शायद उसको भी वो एक फाइट बैक करने के लिए एक अंदर से एनकरेजमेंट आ रहा है उस जो नेचर के सीन को देख करके कि किस तरीके से बारिश जो अभी तक कुछ नहीं था देर के मतलब गड़गड़ाहट, वो एक आवाज थी, वो एक ट्रम्पेट था, वो ट्रम्पेट था इसके अंदर जोश भरने के लिए. वो किस तरीके से ब्रीज, वो विंड ने एक सोए हुआ समुद्र में एक स्टैटिक मूवमेंट ला दी. सो ही इज आल्सो फीलिंग द सेम सर्ज अराइजिंग इन हिज within. To have made him a hunter again, now he feels like being a hunter again. And a hunter and a fisher. This has been his quality, this has been his identity. An aboriginal. So he needs to be an aboriginal once again. He does not simply want to be a coward. For his eyes have been full with a smoldering thought. Smoldering just like when you are in some rage, anger, suppressed anger. वो जो burning pain, ये एक बर्निंग सेंसेशन है आउट ऑफ सप्रेस्ड एंगर, उस तरह से आप लिख सकते हैं. बर्निंग ऑफ सप्रेस्ड एंगर. देयर इज एन एंगर इन हिज स्पिरिट. ही फील्स एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड एंड डिस्ट्रेस्ड एंड एंग्विश्ड एट द लॉस ऑफ हिज ट्राइब. उसके अंदर एक वोल्केनो इरप्ट हो रहा है. वोल्केनो किस लिए? टू अवेंज अपॉन हिमसेल्फ, बदला लेने के लिए. जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इसकी पूरी ट्राइब के एक्सटेंशन के लिए. नाउ ही फील्स लाइक टेकिंग अ रिवेंज फॉर द लॉस ही हैज सफर्ड, फॉर द लॉस द पीपल ऑफ हिज ट्राइब हैव सफर्ड. सो नाउ हिज आईज हैव बीन फुल विद स्मोल्डरिंग थॉट. मतलब he is thinking but this is not merely thinking, the suppressed anger is erupting a volcano in him. Well, he dreams of the hunts of yore, and now he feels like dreaming. ये एक उस तरह की बात समझ लीजिए कि when the person knows that his doom is quite near, when the person realizes that his end is quite near, तो वो जो हजार तरह की thoughts उसके सामने आते हैं, वो क्या thoughts आते हैं, क्या है? Now he dreams of the hunts of yore. Hunts मतलब जो fights हैं, वो hunting है, because the tribal people have been hunted by their instinct. So he also thinks of the various hunts that he was a part of, that he did. He hunted several times, so every time, every hunt had a story. Every hunt needed a courage. Every hunt was an exploration of his courage. Every hunt was an expression of his courage, indomitable courage. तो वो सारी हंट्स के बारे में सोच रहा है. योर मीन्स ऑफ रिमोट पास्ट, एंड ऑफ फोर्स मीन्स एनिमी, एंड ही इज ड्रीमिंग ऑफ थिंकिंग ऑफ द फोर्स दैट ही सॉट मीन्स रैन आफ्टर. जिन दुश्मनों के पीछे वो भागा, जो भी दुश्मन थे, जो भी एनिमीज थे, जिनको कि उसने ढूंढा, मारा, फाइट की. एंड फाइट्स दैट ही फॉट, और जितनी भी लड़ाइयां, मतलब जितने भी स्ट्रगल्स उसने फेस किए, वो सब ही इज थिंकिंग ऑफ all those encounters. He is thinking of all those courageous acts. He is thinking of all those feats. He is thinking of all those magnificent tasks that he undertook. चाहे वो हंट्स हो, चाहे वो अपने आप को सेव करने के लिए दुश्मन को मारना हो, चाहे वो अपनों की सेफ्टी के लिए दुश्मन को भगाना हो, जो भी. And those who will battle no more. Battle as a verb use किया हुआ है. And now he is dreaming of the people who are no more and as such will not be able to accompany him. उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो शायद अब उस मैसेकर की भेंट चढ़ चुके हैं. वो जो एबोरिजिनल पीपल, जो इसके दोस्त, सगे संबंधी, पेरेंट्स और इसके एल्डर्स, यंगर्स, पूरा जो कुटुंब है, वो सारे लोग जिनके साथ इसने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, उनके बारे में सोच रहा है जो शायद अब नहीं होंगे. Who will battle with him no more, and who will go to battle no more. वो शायद अब, क्योंकि since they are no more, so they will not be able to go to any battle anymore. He is alone. He realizes that he is alone, but he cannot help thinking of all those people.
He cannot help thinking of, dreaming of all those battles that he fought. He cannot simply avoid the idea that his life had been a glorious one. The life of his people has been a glorious one. He has lived a glorious life being with his men, Aboriginal tribe. तो उनके बारे में सोचे बगैर ये रह नहीं पा रहा. ये लास्ट थॉट्स है उसकी. लास्ट थॉट से अपनी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है. एक ऐसा समझ लीजिए कि लाइफ खत्म होने से पहले पूरा फ्लैशबैक उसके सामने आ रहा है. He is visualizing the entire scene of his life. जो भी उसके लाइफ में हुआ है, जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं, जो भी एक मैग्निफिसेंट मोमेंट्स रही हैं इसकी लाइफ की, वो सब. It is well that water which tumbles and fills. Tumbles यहाँ पे turn और dry भी है. Dry के सेंस में आप समझिए. Goes mourning and mourning alone. ऐसा लग रहा है मतलब ये pathetic fallacy. इसको आप क्या समझोगे? It is well that the water which tumbles and fills goes mourning and mourning alone. ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो वाटर कोर्स है, चाहे वो नाला है, चाहे वो रिवर है, that is also just getting filled and getting dried, getting filled and getting dried. And it is an expression of his sorrow in the loss of this young man. शायद वो ये जो लॉस इसको फेस करना पड़ा है, उसके लॉस में वो एक एक्सप्रेशन है. साथ we are also mourning along with you. We are also lamenting your loss along with you yourself. So it is well that the water which tumbles and fills goes mourning and mourning again. ये mourning मतलब एक तरीके से making a sad sound, as if someone is mourning, someone is lamenting. For an echo, जो पिछले स्टैंडा में हमने देखा कि किस तरीके से he felt a surge in his within. एक अंदर से उसके अंदर का शिकारी जो जागा और शायद उसने कोशिश की भागने की कोशिश की होगी और वो उन लोगों की नजरों में आया होगा जो कि इसको पीछा कर रहे हैं. तो शायद he has been hunted down, he has been shot, and then this is the echo of the gunshot. There is heard an echo of the gunshot somewhere in the area. For an echo rolls out from the side of the hills. शायद जहां पर वो जिस जंगल में जिस स्पॉट पे वो छुपा हुआ है वहीं पे आसपास अगर नजर मारते हो, ये फ्रॉम द पोइट्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द ऑन लुकर्स पर्सपेक्टिव, जो आप जैसे एज ए रीडर हम विजुलाइज करते हैं, तो वहां पे एक गन शॉट की आवाज आई और वो एको शायद वो इसको मारने के लिए थी. एंड परहैप्स ही हैज बीन हिट. So for an echo rolls out means emerges out from the sides of the hills and he starts जैसे कि jumps at the wonderful song and the sound of the wonderful song. And perhaps he knows that he has been hit and now he remembers the glorious song of his tribe, the song that filled an enthusiasm in them. ये ट्राइबल कम्युनिटी जो भी आप जितनी भी समझते हो, उनके अपने लोकल कुछ लिटरेचर होता है ओरल ट्रेडिशन के थ्रू. ओरल लिटरेचर में वो उन वॉरियर्स की पैनेजेरिक्स होते हैं, वॉरियर के बारे में एप्रिसिएशन होती है इन द फॉर्म ऑफ पोएम, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, जो कि आने वाली जनरेशन को एनकरेज करती है. तो शायद वही ग्लोरियस सॉन्ग्स, करतब, जो ग्लोरियस फीट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज ट्राइब, उनमें का कोई एक सॉन्ग उसको याद आ गया कि शायद मैं कोशिश की, मैंने I also tried to fight back. Even though I was killed, that is another thing. Since I was alone and then they were many, so they were more powerful than I was, and as such I was killed. But it does not undermine my courage. मेरे courage कम नहीं हो जाता इससे. मैं लड़ा, that is more important. For a person of Aboriginal tribe, fighting is more important. Fighting that is required. So he starts at the wonderful song and the sound of that wonderful song. ये wonderful song वही है जो कि इनकी ट्राइब के कैरेक्टरिस्टिक सॉन्ग हैं, जो कि हमेशा इनमें एक एंथुसियाज्म भर देते हैं. वो सॉन्ग्स की बात. And he sees through the rents of the scattering fogs. Rents मतलब cliffs. अब एक ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोहरा, उस कोहरे में से चीरते हुए जब आप कोशिश करते हो देखने की, so you are able to see something. What he is able to see from the rents. Rents मतलब जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स समझ लीजिए. He sees through the rents of the scattering
फॉग्स, जो भी फॉग मतलब जो भी धुआं या फिर जो भी फॉग टाइप की कंडीशन है वहां पे, चाहे वो धुएं का फॉग हो, उससे स्कैटरिंग मतलब इट हैज बीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर एंड देन थ्रू द क्रैक्स ऑफ थ्रू द ओपन स्पेस इन बिटवीन द चंक्स द फ्लेक्स ऑफ द फॉग। वो जो फ्लेक्स हैं उस फॉग के उन बीच में से देखने की कोशिश अगर करोगे तो यू आर एबल टू सी थ्रू दैट। द कोरबरी इज a ritual dance that you see in this picture. This is the typical Aboriginal dance when they celebrate something. So in tribes or with the tribal people, you may have noticed that whenever they have some occasion to celebrate, they dance like this. वो झींगा लाला हो टाइप का आपने नोटिस किया भी होगा मूवीज में, तो वही तरह का डांस आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलरली कोरोबरी। सो एक एबॉरिजिनल रिचुअल की तरह ये यूज किया जाता है। सो नाउ ही इज विटनेसिंग और एक तरीके से हेलुसिनेटिंग, ही इज हेलुसिनेटिंग, क्योंकि उसको पता है कि इसकी जो जैसे जैसे वो गोली का असर हो रहा होगा, जैसे जैसे इसको एहसास हो रहा होगा कि ही इज गेटिंग नो मोर, मरने के बिल्कुल पास में है, ये इसकी जो मौत है वो बिल्कुल पास में है, एंड देन ही इज अबाउट टू डाई, तो वो हेलुसिनेट कर रहा है, उसके क्या कहते हैं बहुत सारी इमेजेस बन रही है। द कोरबरी वॉरलाइक एंड ग्रिम, एक कहीं ना कहीं वो एक इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अचीवमेंट, वो इसको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब क्योंकि हेलुसिनेशन जब होता है तो वो बहुत सारी इमेजेस मिक्स हो जाती है, जैसे ड्रीम होता है, ड्रीम में बहुत सारी इमेजेस मिक्स हो जाती है। यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज द सीन ऑफ अ हैप्पी एंड द सोरो एट द सेम टाइम और एट सडन स्कैटर्ड फॉर्म, एक साथ हैं अलग अलग हैं, किस तरीके से हैं, क्योंकि ड्रीम क्या है वो एक ब्लेंडिंग होती है बहुत सारी इमेजेस की, नो क्लियर इमेज एट वन टाइम। The Corobri warlike and grim, the Lubra is referred to a woman, and now he is also witnessing, जो उसी hallucination में, उसी जो मन में सोच रहा है वो ड्रीम लाइक ट्रांस जो है, उस ड्रीम लाइक ट्रांस में वो विजुलाइज कर रहा है कि किस तरह से उसके सामने सीन है कि the people are celebrating Corobri, the people are celebrating some ritual and then the dance is there before them, and then on the other side is a bonfire, and on the other side of the bonfire is sitting a lady on a log. The Lubra who sat by the fire on the logs, वो जो लकड़ियों के लट्ठों पर एक लेडी बैठी हुई है, and then who that lady can be, जिसके बारे में ये ड्रीम कर रहा है, and then the Lubra who sat by the fire on the logs to watch like a mourner for him. Perhaps he realizes that his death is quite imminent, मरने तो वाला ही है ये, और वो जो रिचुअल है, वो जो कोरोबरी का डांस है, वो शायद इसके मॉर्न करने में, मतलब इसकी करेज को सेलिब्रेट करने में और इसको मॉर्न करने में, एट द सेम टाइम मॉर्निंग एंड सेलिब्रेटिंग द फीट्स दैट ही हैज डन। फीट क्या हुई, जिस तरीके से ये दुश्मन के सामने खड़ा रहा, दुश्मन के सामने ये डटा रहा, दुश्मन के सामने लड़ने की एक जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट थी वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए और इसकी जो डेथ है उसको मॉर्न करने के लिए। वहां पे कौन है, इसकी ऐसा लगता है कि वो जो लेडी है वो लेडी इज अ मॉर्नर फॉर हिम, एंड परहैप्स दिस लेडी इज हिज मदर, लाइक अ मदर अ मॉर्नर फॉर। ऐसा फील हो रहा है कि दैट इज नॉट मेयरली व्हेन एनी अदर लेडी, द लेडी इज हिज मदर एंड देन हु हैज कम टू मॉर्न फॉर हिम। Since he is alone, nobody else to mourn for him, so he visualizes his mother. वो जो सेलिब्रेशन के सीन के सामने कोई एक इमेज, जो बाकी तो भीड़ है वो, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा जो कि क्लियरली इसको नजर आ रहा है, इवन दो इट इज a hallucination, इवन दो इट इज a dream like trance, तो वो चेहरा किसका है, माँ का। एक जो सबसे टफ टाइम जो होता है आपको, वो आपको कौन याद आता है, आपकी माँ। तो यहां पर भी उसको लग रहा है कि दिस इज माई लास्ट मोमेंट अलाइव, और इसमें अगर किसी को याद करना चाहूंगा तो जो मेरे लिए फील कर रही होगी वो है मेरी मदर। सो नाउ ही इज फीलिंग द सेम थिंग, ही इज विजुअलाइजिंग द ट्रांस लाइक स्ट्रक्चर, द ट्रांस लाइक सिचुएशन, that he has stood against the enemy, he has been hunted down, he has been shot, and then he is only waiting for a few moments,
उन फ्यू मोमेंट्स में पूरी दुनिया भर का अपनी पूरी लाइफ को इसने फ्लैशबैक के थ्रू जी लिया। और यहाँ पे लास्ट में लग रहा है कि ये एक रिचुअल भी उसके लाइफ उसके सामने हो रहा है, वो सेलिब्रेशन हो रहा है। शायद सेलिब्रेशन में उसकी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाएगा और उसकी डेथ को मॉर्न किया जाएगा। और मॉर्न करने वालों में कौन है? His mother. In the last stanza, his entire life is being evaluated by the poet. In what way he should be remembered by the progeny, by the coming generation. किस तरीके से याद किया जाएगा? Whether he fought bravely, whether he lived like a champion, whether he will be labeled along with the champions, the heroes, the chief of his community, of his tribe. So when will he go to his sleep? Sleep means death. When he dies, so in what way he will die? In what way he will be remembered after his death? So will he go to his sleep? Will he go in his sleep from these desolate lands? These desolate lands matlab lands where he is dying. These lands. Will his fate be like a chief of the tribe? तो क्योंकि वो करेजियस रहा है तो करेजियस क्या वो चीफ की तरह रहेगा जो वो पूरा सरदार। सो हिज करेज विल बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द चीफ ऑफ द ट्राइब, ये रहेगा टू द रेस्ट ऑफ हिज रेस। अब क्योंकि ही हैज़ बीन द लास्ट मैन, ही हैज़ सर्वाइव्ड एंड देन ही वॉज द लास्ट मैन टू डाई, विल ही बी रिमेंबर्ड एज अ चीफ अमंग द रेस्ट ऑफ हिज मैन, ये उसके माइंड में चल रही है। ये इनफैक्ट पोएट्री इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिम और ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिज ओन लाइफ। वो जो उसकी ड्रीम अभी कंटिन्यू था, ड्रीम जो डेथ बेड पे जैसे ड्रीम होता है, व्हेन ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ ओनली अ फ्यू मोमेंट्स टू लिव, 2-4 मोमेंट्स बची हैं उसकी ज़िंदगी में, अब वो पूरी लाइफ में जो सबसे बेहतर हो सकता है उसकी लाइफ का वो याद करने की कोशिश कर रहा है। शायद मरते मरते उसकी जो लास्ट ड्रीम्स हैं या लास्ट इमेजेस हैं उसके माइंड में वो अच्छी होनी चाहिए। तो क्या जैसे वो अभी पीछे वाले स्टैंजा में आपने देखा कि किस तरीके से वो इमेजिन कर रहा है कि देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, देयर इज़ अ रिचुअल ऑफ कोरोबरी एंड देन द पीपल आर डांसिंग एंड मैरी मेकिंग एंड देन दे आर सेलिब्रेटिंग हिज फीट एंड देन वन लेडी इज़ देयर हु इज़ मॉर्निंग फॉर हिम, परहैप्स दिस लेडी इज़ हिज मदर। आगे और देख रहा है कि क्या जब वो जाएगा यहाँ से, जैसे पोइट खुद सोच रहा है उसके बारे में, तो क्या वो जब वो जाएगा तो विल ही गो फ्रॉम दिस प्लेस, दिस मॉर्टल प्लेस जस्ट लाइक अ चीफ ऑफ हिज ट्राइब, क्या उसकी लाइफ वर्थ वाइल समझी जाएगी? व्हेन सम पीपल रिमेंबर हिम, सो विल दे रिमेंबर हिम लाइक अ वॉरियर, लाइक अ फाइटर और लाइक अ कावर्ड, किस तरीके से सोचेंगे? तो विल ही गो इन हिज स्लीप फ्रॉम दिस डिसोलेट लैंड्स लाइक अ चीफ टू द रेस्ट ऑफ हिज रेस विद अ हनी वॉइस्ड वुमन। शायद नाउ ही इज अगेन इवोकिंग एन इमेज ऑफ अ वुमन, एक और वुमन की इसको इमेज उसके माइंड में आ रही है। आने वाली जो इसकी लाइफ होगी, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, जब वो दोबारा इसका जन्म होगा तो शायद वो देयर इज़ अ वुमन हु इज़ कॉलिंग हिम, then the woman is a honey voiced soft spoken woman who is calling him to come। शायद वो उसकी मदर जो कि उसको अगले जन्म में बुलाने की कोशिश कर रही है। with the honey voiced woman who beckons मतलब calls by the indication of a finger, beckons and stands and gleams like a dream in his face। the image of that woman is flashing upon his face just like a dream। जैसा आपके माइंड में वो ड्रीम पिक्चर करता है वैसे ही वो द ड्रीम ऑफ दैट लेडी हु इज कॉलिंग हिम परहैप्स इन हिज नेक्स्ट बर्थ हु वुड बी हिज मदर। तो वो मदर शायद उसको बुलाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि ही हैज़ बीन अ वॉरियर। एवरी वुमन वुड वॉन्ट अ सन लाइक हिम, एवरी वुमन वुड वॉन्ट अ वॉरियर लाइक हिम। तो अब इसको अगर लग रहा है कि ही हैज़ फॉट like a soldier, he has fought like a warrior, he has been a hunter, he has been a true aboriginal, he did not submit, he did not surrender, he did not simply adopt the alien culture, he did not simply adopt the ways of the colonialist, he fought like a warrior, he tried to safeguard the culture of his tribe, even though it was eradicated, that is another thing, but he fought। तो उसके बेस पर जब इसकी नेक्स्ट बर्थ होगी तो क्या इसको उसी फॉर्म में कोई चाहेगा
तो ऐसा लग रहा है कि दैट ही इज बीइंग वांटेड बाय अ वुमन इन हिज नेक्स्ट बर्थ एज अ सन हु इज वेटिंग फॉर हिम एज हर सन. So with a honey voiced woman who beckons and stands and gleams मतलब shines like a dream in his face, like a marvelous dream in his face. This could be a marvelous dream a person can have. आपका the last ever dream you can wish for, you can have before you die is this dream. कि उसको लग रहा है कि his life has been meaningful. He has lived his life in a meaningful way. He remained a true aboriginal up to the very last. He did not submit. He was killed, that is another thing. But he was not killed like a servant. He was not killed being in a subservient state. He remained an aboriginal. He remained a tribal to his very last at his deathbed. क्योंकि मैं एक true aboriginal रहा हूँ. I have not been a fugitive. I have not been a slave. I have not adopted anything, any alien culture. तो वो true aboriginal रहा है. That's why he dreams like this. This is the wonderful dream we can ever have. तो इस पोम के थ्रू जो aboriginal tribes उनका struggle against the colonialist power, और ये एक पर्टिकुलर केस हो सकता है और ये लेकिन जनरल वे में आप समझो तो दिस वाज द कॉमन केस विद ऑल द ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ व्हेन दे फेस्ड द कोलोनाइजेशन. वो जो कोलोनाइजेशन का पीरियड था उसमें मोस्टली ऐसी ट्राइब्स जो कि एनाइलेट हो गई, मोस्टली ऐसी ट्राइब जो कि इरेडिकेट कर दी गई. जिन ट्राइब्स ने उस कोलोनाइजेशन को एडॉप्ट नहीं किया उनको ख़त्म कर दिया गया. ट्राइब्स के साथ ऐसा जनरली इसलिए होता है बिकॉज दे हैव फर्म बिलीफ इन देयर ओन लोकल कल्चर, दे हैव फर्म बिलीफ इन देमसेल्व्स, दे आर नॉट प्रोन टू एनी एलियन कल्चर, कल्चरल डोमिनेंस. दे विल डाई बट दे कैन नॉट अडॉप्ट द एलियन कल्चर. They are so firm in their belief, and as such, when the colonization or the colonialist does not feel submitting before them, so they are killed. The tribe is eradicated, क्योंकि उनको लगता है कि मानेंगे नहीं तो इनको फिर हटा दो, ख़त्म कर दो. इनका फेथ एकदम से डिगाया नहीं जा सकता. जो एबॉरिजिनल स्ट्रगल था कोलोनाइजेशन के पीरियड में, उसकी एक ये ग्लिम्प्स है. So that is all for now. Hopefully I was able to make myself understood through this poem. And if you have certain queries, so you can always comment in the comment box below, and you can ask any question. Like this video, share it among the friends and among the deserving students who are preparing for their UG and PG courses. And if you are new to the channel, please make it as a point to subscribe to the channel so that you don't miss these videos. So thank you so much. Keep learning, stay motivated.